Hello student, today I am going to discuss part second of molecular basis of inheritance. In this part we will discuss about the Hershey and Chase experiment. This experiment was based on principles of transduction. First we will discuss about the structure of T2 bacteriophage. This bacterial virus is a virus, contains an outer protein shell, an inner core of genetic material, that is DNA. Here in this figure you can see that this outer covering is the capsid and it is made up of protein, and inside this protein coat or capsid there is DNA or the genetic material of this T2 bacteriophage virus is present. The T2 phages are of tadpole shape, differentiated into head and tail region. It is divided into two parts, head and tail. Head is an elongated bipyramidal six-sided structure composed of several proteins. So head is proteinaceous. It is also known as capsid. Within the head is closed non-ending DNA molecule. Tail is hollow cylindrical. Tail bears 24 helical striations and 6 tail fibers appear from hexagonal plate at the distal end of the plate. Here you can see that this portion is the head, and this part is the tail, and it consists of, there are many helical striations are found. So there are about 24 helical striations are present here. Here it is given that 24 helical striations are present in the neck region, and these are the tail fibers. There are 6 tail fibers are present. So 6 tail fibers are present in the tail of this T2 bacteriophage. Proteinaceous outer shell contains sulfur but no phosphorus. There is no phosphorus present in this capsid because protein contains cysteine and some other amino acid which contains sulfur. So here sulfur is present, phosphorus is not present here. Similarly, where DNA contains phosphorus but no sulfur is present. In DNA, phosphorus is present, but here no sulfur is present. Next is Hershey and Chase experiment. A bacteriophage T2 virus infects the bacterium E. coli. After infection, the virus multiplies and T2 phase are released with the lysis of the bacterial cell. Here you can say that this one is the T2 phase and this second is the E. coli bacteria. It infects the E. coli bacteria by injecting its DNA into the E. coli. Because this DNA contains all the information required for the formation of new phases, so large number of phases are produced into the E. coli. After that, when large number of T2 phases are formed inside E. coli cell, then cell lysis takes place. Cell lysis takes place. Here you can say that कि ये cell जो है break हो जाता है. जितने भी T2 bacteriophage हैं वो they are released outside of the E. coli. So this is the lytic cycle of T2 phase virus. Hershey and Chase in 1952 devised an experiment with two different preparation of T2 phages. So they prepare two different preparation of T2 phages. In one preparation, they made the protein part
radioactive by growing E. coli infected T2 phase in a medium containing radioactive sulfur 35. In another preparation, DNA was made radioactive and by growing few E. coli infected T2 phase in a medium containing radioactive phosphorus 32. यहाँ पर हर्शी और चेज ने T2 फेज के दो सेपरेट प्रिपरेशन तैयार किए। एक प्रिपरेशन में उसने प्रोटीन पार्ट को रेडियोएक्टिवली लेबल्ड किया। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैप्सिड है ये प्रोटीन पार्ट है और यहाँ पर सल्फ़र पाया जाता है। और दूसरे प्रिपरेशन में इन्होंने डीएनए को लेबल किया और डीएनए में क्योंकि फॉस्फेट पाया जाता है तो इसको फॉस्फोरस 32 से लेबल किया। लेबल करने का तरीका यह है कि एक ई कोलाई बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन कॉज करवाया जाता है। इस इन्फेक्टेड ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जाता है जहाँ पर सल्फर 35 प्रेजेंट हो। ए मीडियम विच कंटेन सल्फर 35। सल्फर 35 एक रेडियो एक्टिव सल्फर है। नॉर्मली जो प्रोटीन है T2 फेज इसके अंदर फॉस्फोरस 32 पाया जाता है, लेकिन जब इस T2 फेज का ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और उस मीडियम में सल्फर 32 की बजाय सल्फर 35 होते हैं तो जितने भी T2 फेज यहाँ प्रोड्यूस होंगे उनकी जो आउटर कवरिंग है, जो प्रोटीन है, वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो जाएगी, क्योंकि नए फेज पार्टिकल यहाँ बन रहे हैं, नए कैप्सिड बन रहा है और कैप्सिड में जो प्रोटीन है वहाँ पर सिस्टीन भी होगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी होंगे। जहाँ पर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होंगे वहाँ पर अब सल्फर 32 की जगह सल्फर 35 प्रेजेंट होगा, यानी ये रेडियो एक्टिवली प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर दिया। सेकेंड प्रिपरेशन में इन्होंने क्या किया, सेम वही प्रोसीजर यूज किया कि T2 फेज से एक बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाया। T2 फेज का जो डीएनए है वो इसके अंदर एंटर हुआ, क्योंकि डीएनए में नए फेज बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। इस ई कोलाई के अंदर बहुत सारे नए फेजेस बनेंगे और इस मल्टीप्लिकेशन को इन्होंने एक ऐसे मीडियम में किया जिसमें फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट था। फॉस्फोरस 32 एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और हम ये जानते हैं कि फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, फॉस्फोरस डीएनए में पाया जाता है। तो जितने भी नए T2 फेज बनेंगे इनका जो डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा बाय फॉस्फोरस 32। यानी अब हर्शी चेज के पास दो प्रिपरेशन थे। एक प्रिपरेशन ऐसा था जिसमें T2 फेज का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था सल्फर 35 से। दूसरा प्रिपरेशन ऐसा था जिसमें T2 फेज का डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था बाय फॉस्फोरस 32 से। These two radioactively phases preparation were allowed to infect separate culture of E. coli. इन्होंने सेपरेटली दो E. coli कल्चर लिया और उनको ये दो रेडियोएक्टिवली, जो एक में प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिवली लेबल था, एक में डीएनए था, सेपरेट E. coli कल्चर मीडियम को इन्फेक्शन कॉज करवाया। प्रोटीन कोड्स वर सेपरेटेड बाय शेकिंग, एगिटेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्होंने जब इन्फेक्शन हुआ तो जो प्रिपरेशन थी जिसमें ई कोलाई और T2 बैक्टीरियोफेज थे, इसको एगिटेट किया, यानी इसको शेक किया और सेंट्रीफ्यूगेशन किया। हम ये देख सकते हैं कि जो T2 फेज पार्टिकल है ये छोटे साइज़ के हैं और हल्के होते हैं, और ई कोलाई का साइज़ T2 फेज पार्टिकल से बड़ा होता है। इसलिए जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जिसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा, यानी जो भारी होंगे,
वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में बॉटम में सेटल हो जाएंगे। इनको हम हैवियर पैलेट्स कहते हैं। एंड दीज पैलेट्स आर इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स। क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स भारी थे, ये बॉटम में सेटल हो गए। इन सेटल पार्ट को हैवियर पैलेट्स कहते हैं एंड दे आर सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। लाइटर वायरल पार्टिकल्स and those particles which do not enter the bacterial cells were found in the supernatant। तो पॉइंट 4 में इन्फेक्शन कॉज करने के बाद जो सॉल्यूशन था, जिसमें ये जो मीडियम था जिसमें इन्फेक्शन कॉज किया गया था, उसको एगिटेट किया गया, उसको शेक किया गया। शेक करने से जो पार्ट बैक्टीरिया के ई कोलाई बैक्टीरिया के बाहर थे वो उससे डिटैच हो जाते हैं, और जो चीज़ अंदर पहुंची है वो उस ई कोलाई के अंदर ही रहती है। तो एगिटेट करने से जो पार्ट बाहर था बैक्टीरिया के वो सेपरेट हो जाता है। फिर इस प्रिपरेशन को सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्योंकि T2 फेज लाइटर वायरल पार्टिकल्स होते हैं, ये सुपरनेटेंट में प्रेजेंट थे, और जो बैक है वो हैवियर पैलेट्स की फॉर्म में बॉटम में सेटल हो जाते हैं। It was found that when bacteriophage with radioactive DNA was used to infect E. coli in the experiment, the heavier bacterial pellets was radioactive, having phosphorus 32। जब दोनों ट्यूब्स को जिसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया था इसको आइडेंटिफाई किया गया, तो रेडियो एक्टिविटी वहाँ पाई गई जहाँ पे हैवियर पैलेट्स प्रेजेंट थे, यानी जो बैक्टीरिया है उसमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई, और उस बैक्टीरिया के अंदर से फॉस्फोरस 32 की रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ एंटर हुई थी T2 फेज की वो फॉस्फोरस 32 वाला पार्ट था, और फॉस्फोरस 32 से हमने DNA को लेबल किया था। जबकि सुपरनेटेंट में हमने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था यानी सल्फर 35 की जो रेडियो एक्टिविटी है वो सुपरनेटेंट में से डिटेक्ट की गई, और इससे ये पता चला कि जो रेडियो एक्टिविटी was found in supernatant was due to the presence of capsid, a protein coat in the supernatant। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ एंटर हुई थी वो DNA था, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर से जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही थी वो फॉस्फोरस 32 की थी, और सुपरनेटेंट में जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही थी क्योंकि सुपरनेटेंट में प्रोटीन कोड प्रेजेंट था, वहाँ जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही थी वो सल्फर 35 की थी। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यही ई कोलाई के अंदर एंटर करता है। This experiment has proved that during infection, the bacteriophage T2 phase is the DNA that actually enter the bacteria. When such infected bacterial cells were developed further, they lysed and new phase particles were formed. So this famous experiment has proved that it is a viral DNA, not the protein, that contains the information for production of more T2 phases particle. Hence DNA is the genetic material। यहाँ पर इसको इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि हमने फर्स्ट केस में यहाँ पर हमने प्रोटीन कोड को जो T2 फेज को हमने की जो दो प्रिपरेशन हमने तैयार की थी, फर्स्ट प्रिपरेशन में हमने प्रोटीन कोड को लेबल किया सल्फर 35 से, दूसरे प्रिपरेशन में हमने DNA को लेबल किया फॉस्फोरस 32 से। इसके बाद इस T2 फेज से हमने यहाँ इन्फेक्शन कॉज करवाया एक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर,
इस मीडियम में ये ई कोलाई बैक्टीरिया है और यहाँ पे हमने T2 फेज जब डाला तो एक इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद इसको हमने एगिटेट किया, ब्लेंडर में डाला, इसको एगिटेट किया, जिससे जो एम्प्टी प्रोटीन शेल था वो इस बैक्टीरिया से डिटैच हो गया। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो हमारे पास ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है जिसमें हमें ये सुपरनेटेंट मिला और नीचे पैलेट्स मिले। जो पैलेट्स थे यहाँ पर हैवियर पार्टिकल थे जहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट था। इसी तरह से दूसरे ई कोलाई कल्चर को हमने T2 फेज की दूसरी प्रिपरेशन से इन्फेक्शन कॉज करवाया जिसमें फास्फोरस 32 था। इन्फेक्शन कॉज करने के बाद इसको भी ब्लेंडर से हमने शेक किया। शेक करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन से जो प्रोटीन कोट था वो डिटैच हो गया, अलग हो गया और हमें दो पार्ट मिला, एक सुपरनेटेंट में लाइटर T2 प्रोटीन कोट था और जो पैलेट्स थे यहाँ पर हैवियर ई कोलाई प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जब डिटेक्ट की गई तो सुपरनेटेंट में यहाँ पर सल्फर 35 की रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। इसका मतलब जो प्रोटीन कोड था वो ई कोलाई के साथ नहीं है। नीचे जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई यहाँ पर फास्फोरस 32 की रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई। इसका मतलब फास्फोरस 32 से हमने डीएनए को लेबल किया था। ये प्रूफ करता है कि डीएनए इस ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है और इस ई कोलाई के साथ के अंदर से फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की जा रही है। इट शोज दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल and it enters at the time of infection in E. coli.